के बाद ये विधेयक को उचित परिवर्तन करने के बाद मैं फिर से इस सदन के लिए आऊंगा। मैं आपको अनुरोध करता हूं माननीय स्पीकर महोदय कि मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं और माननीय स्पीकर महोदय मैं ये भी अनुरोध करता हूं कि विधेयक को जांच हेतु विभाग संबंधी गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को एक मिनट। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, मैं इस विधेयक को, तीनों विधेयकों को गृह विभाग के कार्य संबंधी माननीय स्पीकर महोदय मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि ये तीनों विधेयकों को गृह विभाग के कार्य संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया जाए। मान्यवर, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। अब इसमें एक मिनट पूछ ले वो। गृह मंत्री जी को बधाई देती हूँ, बहुत ही बड़ा परिवर्तन। सर सिर्फ एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जो लोग जेल की सज़ा काट के अभी भी जेल में 30-30 साल से, कुछ उनके लिए भी इसमें है कि नहीं, एक ये पूछना। सर दूसरा सवाल ये कि प्रैक्टिकली जो ज़मीन में होता है सब घर घर तक नशे पहुंच रहे हैं, जो घर वाले किसी को बताते भी हैं तो उनके बारे कोई उनका एक्शन नहीं जाता, तो कोई प्रावधान इसके लिए भी कुछ होगा? एक मिनट गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी माफी का सवाल है। माफी अपराध क्या है इसके आधार पर करने का संपूर्ण वैधानिक प्रावधान है। बी मेहताब जी, सजा पूरी कर ली है, इसको छोड़ने के लिए सजा पूरी नहीं होती है, जन्म टिप होती है, अंतिम सांस तक होती है। इसको 14 साल में करने का जेल के अधिकारी के पास अधिकार होता है। वो अधिकार के उपयोग के लिए भी गुना को देखकर वैधानिक अधिकार उसको दिए गए। बी मेहताब जी प्लीज एक मिनट। बी मेहताब जी, बी मेहताब जी। Sir, I am very grateful to be a witness in the history in the making. कई सालों से as a journalist by profession, we have been repeatedly asking for change in IPC and also CRPC. And during my last 25 years in this house, during Atalji's prime ministership, we had also deliberated on change of Evidence Act. Why it is necessary? To certain extent, the then Home Minister, Mr. Advani, had assured this House that yes, we will be working on the change of Evidence Act. So today when I saw, because this is in a supplementary list of business, and Honorable Home Minister has brought about 3 bills together, totally overhauling our legal system, just law and justice system. Actually, I would only like to mention here, of course, in the statement of objects and reasons it is mentioned relating to IPC. What was IPC? It is not actually Indian Penal Code. It was originally an Irish Penal Code. And Macaulay is the father of this IPC. Though in 1834 this committee was formed, the law committee was formed by the British government. And 1834 means it was during the East India Company. 1856 the British Crown came into power in India. And in 1860 this was implemented, just removing Irish and putting Indian Penal Code. Okay. So it was more like subjugation of the subjects by the power, by the ruling power. So now, as the Home Minister has very rightly mentioned, he has enunciated certain points and it is going to the standing committee. Similar is about the Criminal Procedure Code. And for 7 decades, I would say, what has been added to and the manner in which our government and the society has been feeling for last quite some time, that contemporary needs should also be looked into, and that has been there. And in the Evidence Act, sir, Evidence Act of 1972, comprehensive review of our criminal law was necessary, which has been done.
in this draft bill, and I believe the Home Standing Committee of Home will go into all those details. And as the Home Minister has very rightly mentioned, it is people-centric, not government-centric or administration-centric. So in that respect, I believe it is a good beginning, and I'm really grateful that I am, including my party members and perhaps all of us, are witness to the history in making, because after so many years, our wishes are being fulfilled. Thank you, sir. माननीय सदस्यों, नहीं डिबेट नहीं हुई इस पे। माननीय सदस्यों, आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की हुए मामले अनुबंधित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, यदि सभा की सहमति हो तो केंद्रीय माल और सेवा संशोधन विधेयक 2023 तथा एकीकृत माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 पर एक साथ विचार किया जाए। सभा की सहमति हो तो इन विधेयकों को बिना बहस की सभा के निर्णय के लिए रखा दिया जाए। माननीय मंत्री जी। Sir, I rise to move that the bill to amend the Central Goods and Services Tax Act 2017 be taken into consideration. And also together with it, as you have mentioned, Honourable Speaker, I rise to move that the bill to amend the Integrated Goods and Services Tax Act 2017 be taken into consideration. प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष। अमित शाह ने बिल पेश किया। आईपीसी नहीं हुण भारती न्यायिक संहिता क्या जाएगा। सीआरपीसी सोध बिल पेश किया गया है और कानून का मकसद सारे न्याय देना है। अमित शाह ने कहा है। दस दईए कि जिथे एक पासे लोक सभा दे विच कार्रवाई चल रही है तो दूसरे पासे कांग्रेस के वालों विरोध किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। So I move. Oh, there's an amendment. Okay, it will be passed. I move that the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत और विधेयक पारित हुआ। दोनों बिल कर दी, दूसरा बिल करना है। हाँ, दूसरा। Sir, I move that the bill be passed. No, sorry. I rise to move that the bill to amend the Integrated Goods and Services Tax Act 2017 be taken into consideration. प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयक अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 से 5 विधेयक अंग बने। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I move that the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई 1:30 तक के लिए स्थगित की जाती है। लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤੇ ਆਈਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਈਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਸੰਹਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ फोन लाइन ਤੇ ਮੇਰੇ सहयोगी विनीत मौजूद ने दिल्ली तो। विनीत, क्या कुछ जानकारी है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई कानूनों को जो है वो बदला गया है और साफ तौर पर पूरी तरह से भारत की जो दंड संहिता है उसे में बदलाव की कवायद जो है वो की गई है। एक बड़ी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बिल को पेश किया गया है, लेकिन साथ ही साथ इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है। संसद की जो गृह मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति है उसे भेज दिया गया है ताकि इस बिल पर और भी आगे चर्चा की जाए। इसके साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का साफ तौर पर कहना है कि चूंकि यह एक बड़ा बदलाव होगा, दंड प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव होगा, इसलिए इस पर व्यापक कंसल्टेशन करने की जरूरत है और इसीलिए न सिर्फ स्थायी समिति को भेजा जाएगा बल्कि लॉ कमीशन को भी इस बिल को भेजा जाएगा बाद में। तो साफ तौर पर काफी लगभग 4 साल के मशक्कत के बाद इस तरह के बिल जो है वो तैयार किए गए हैं, जिसमें पूरी तरह से दंड प्रक्रिया का जो में बदलाव जो है वो किया जाएगा। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो औपनिवेशिक मानसिकता है उससे आगे निकल करके जो भारतीयों को न्याय दिलाने की बात है वो इसमें की जाएगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रद्रोह जो सेडिशन के संबंधित जो कानून में सेडिशन की जो बात की जाती थी उसे पूरी तरह से खत्म करने की कवायद जो है पेशकश जो प्रस्ताव जो है वो इस बिल में लाया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का साफ तौर पर कहना है कि कई बार में जो सजा माफी की अपील जो की जाती है उसमें राजनीतिक दबाव में होता है, उसे खत्म करने की कवायद जो है वो की जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई इलेक्ट्रॉनिक चीजों को भी इसमें जोड़ा गया है। आधुनिकता के साथ जो है वो न्याय प्रक्रिया को, दंड प्रक्रिया को जोड़ा गया है। FIR को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने की बात जो है वो की गई है। कहीं पर भी बैठा कोई भी व्यक्ति FIR दर्ज कर सकता है। एक बड़ी बात यहाँ पर सामने यह भी आ रही है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं या फिर बच्चों के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उस पर जो है वो खास ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बोल रहे थे कि विभिन्न अपराध में है जिन पर अभी तक कोई कानून नहीं है, जैसे स्नैचिंग को लेकर के कोई कानून नहीं है, उसको लेकर के यहाँ पर कानून जो है वो बनाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ हम जिस तरह से जो देश में विभिन्न तरह के आरोप लग रहे हैं, नई तरह के जो अपराध हो रहे हैं जिसमें मॉब लिंचिंग की भी बात आ रही है, तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी कानून बनाने की बात जो है वो मैं यहाँ पर की गई है, जिसमें 7 साल के सजा की प्रावधान का प्रस्ताव जो है वो लाया गया है। साथ ही साथ इसमें मृत्यु दंड तक के भी की सजा का प्रस्ताव जो है वो इस कानून में लाया गया है। तो साफ तौर पर भारतीय दंड प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की कवायद जो है वो इन 3 बिलों के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखी है। जी। इसके अलावा विनीत, जिक्र किया गया हरसिमरत कौर बादल की ओर से सवाल उठाया गया कि जिनकी सजा पूरी हो चुकी है उन्होंने सवाल किया। इसके अलावा बहुत लंबे समय से सीएम पंजाब की ओर से भी मांग रखी गई थी कि अगर बेअदबी की जाती है तो उसके दोषी को भी ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए। उसके लिए कोई जानकारी आपके पास कानून के मुताबिक? जी, निश्चित तौर पर यहाँ पे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव किया है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो कई लोग जो हैं वो कई लंबे समय से जेल में बंद रहते हैं, जितनी की सजा रहती उनकी हो सकती है उससे भी अधिक लंबे समय से जेल में बंद रहते हैं। जैसा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पंजाब से सांसद जो हरसिमरत कौर बादल है उन्होंने यह बात उठाए थे, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जो पूरी तरह से प्रक्रिया बन करके आएगी, जो नया कानून बनेगा उसमें इस तरह के भी प्रावधान जो है वो किए जाएंगे। जी विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। CRPC सोध बिल पेश किया गया है और पूरी डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे सहयोगी जिक्र कर रहे सन कि आखिरकार की कुछ सोध की गई है। तस्वीरां ने राहुल गांधी नजर आ रहे ने, प्रदर्शन किया जा रहा है संसद के बाहर, विरोधी दल प्रदर्शन कर रहे ने। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ